Jai Swaminarayan. Today I am going to conduct the remaining points which are there in the characteristics of organizing. It is for the 12th standard commerce students, and here I am continuing with the 6th point, that is establishment of interrelationship. So, a proper organizing structure establish the interrelationship between work divisions and you can say position. ओके ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह का इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करता है जो वर्क डिवीजन और ग्रुप को ठीक से दिखाता है एंड इट क्लैरिफाइज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्क विद द अनदर एंड वन डिवीजन विद द अनदर डिवीजन. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करती है वर्क पोजीशन और डिविजन्स के बीच में. तो जो भी काम होता है एक काम को दूसरे काम से कैसे जोड़ा जाए, कैसे इंटर रिलेट किया जाए, वो समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी हेल्पफुल रहता है. So it clarify the relationship between one work with the another one and one division with the another division. तो इस तरह से एक लिंक क्रिएट होती है, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग क्रिएट होता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजिंग या फिर एक स्ट्रक्चर जो है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हो वो क्रिएट करना जरूरी होता है. So if you want to establish the interrelationship between the different work divisions and positions of the jobs or the positions that are related to individuals which those who are working in your organization, then for that the proper organizing structure is necessary, or proper structure should have to be created which establish the interrelationship between the division, position and work. 7th point is monitoring and control. Yes, monitoring and control is one of the basic requirement of any organization. Employee is working as per the responsibility assigned to him or not. मॉनिटरिंग और कंट्रोल इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ये जज कर सको या फिर ये चेक कर सको कि एम्प्लॉय जो है वो जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है उसके हिसाब से काम कर रहा है या नहीं. इस चीज़ को चेक करने के लिए आप कह सकते हो कि मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कंट्रोल, मॉनिटरिंग, कंट्रोल या फिर कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज की जाती है जिससे कि एक तरह से आप कह सकते हो सुपरविजन जो होता है वो भी एक कंट्रोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिससे कि ये चेक किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. So these are some of the basic requirement of the any organization because the work should have to be checked and thereafter if any deviation is being found or any default is found that should have to be rectified by the corrective action. ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर में किसी तरह का डिफॉल्ट, अगर किसी तरह के वर्किंग में किसी तरह की फॉल्ट या फिर प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज. यस, many people are working in the organization for the accomplishment of a common goal. So group activity can be conducted properly if the structure is being created in a right way, or proper organization or proper organizing is necessary in order to conduct the group activity in a right manner. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में large number of people are actually involved in the working. They are being working in order to achieve some common goals.
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं वर्क काम में, और वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों की जो ग्रुप एक्टिविटी है उनको राइट वे से, उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर से कंडक्ट किया जा सके। So the organization is also being termed as a group activity because a large number of people are involved in the organization for the accomplishment of a common goal, and organizing is necessary so that the group activity can be conducted in a systematic manner. Ninth point is controlled administrative system. Organizing is a kind of controlled administrative system. ये एक तरह का controlled administrative system है which rules and control are required to define the relationship. So in any organization or business unit, some rules and controls are required to define the relationship, the working relationship between the employees or the work group. तो ये एक ऐसा कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक गतिविधि को ठीक तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके बारे में कुछ डिसीजंस ले सकते हो, और जिसमें हर एक एक्टिविटी पर थोड़ा कंट्रोल इम्पोज किया जाता है, क्योंकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में लेके बिजनेस को चला रहे हो उसको अचीव आप कर सको। So it is a kind of controlled administrative structure and in which the rules and control are necessary to define the relationship between the employees. ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल्स और कंट्रोल दोनों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप दो एम्प्लॉयज के बीच में कैसा वर्किंग रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ डिसाइड कर सको, या फिर आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको ठीक से डिटरमाइन कर सको। सो today I have explained to you about the characteristics that is related to organization. In that, establishment of interrelationship. The organization is a kind of structure that establishes the interrelationship between the position, division and work. Means it clarifies the relationship of one work with the another one and one division with the another division. तो दो डिवीजन के बीच में कैसा वर्किंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर जरूरी होता है। एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। Yes, this is one of the basic requirement of any organization, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि एम्प्लॉय जो है वो ठीक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन की गई है उसके हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जज करने के लिए मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। Next thing is group activity. So in any organization many people are being involved or they are being engaged in order to achieve one common goal, and proper organizing is necessary so that the group activity is being carried out in a systematic manner. तो अगर आपके जो भी स्ट्रक्चर, वर्किंग स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है जिसको आप एक ऑर्गेनाइजिंग कहते हो, जिसे आप ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हो, वो अगर सही है तो जो भी जितने भी लोग किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हुए हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस के होते हैं उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो वो एक्टिविटी ठीक तरीके से कंडक्ट होगी। And next but the last point was controlled administrative system. Yes, it is a kind of controlled administrative system in which the rule and control determines the relationship among the individuals or employees.
तो ये एक ऐसा कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कंट्रोल इम्पोज किए जाते हैं ताकि एक प्रॉपर वे से वर्किंग रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाए और उसको अच्छे से डिटरमाइन भी किया जा सके. So these are the points that are related to the characteristics of organizing. So what is included in the process of organizing? The point I am going to explain you, but first of all you should have the idea that what are the points that are included in the process of organizing. So clarifying objectives, list of work, departmentation function to determine departmental positions and abilities, the delegation of authority and responsibility, establishment of interrelationship, and preparing organizational chart. So these are the functions that are being involved in the process of organizing. ये कुछ फंक्शन है, कुछ कार्य है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. मेन गोल, सब गोल्स शुड हैव टू बी interpreted in a proper way, making the structure of the organization. Or you can say organization structure is being based on some of the objectives that is being prepared at the time of planning stage or at the planning stage. So main objective, sub objectives are being taken into consideration while forming the structure of organization. So for the first step in making the organization is determining or clarifying the objectives. So कोई भी organization structure बनाने से पहले आपको उसके related जो हेतु होता है, जो objectives होता है या goal होता है, उसको determine करना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी organization structure बनता है वो उन मेन ऑब्जेक्टिव्स और सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेके बनाया जाता है. तो इस वजह से क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स और डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ वर्क. सो आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ वर्क आर बीइंग प्रिपेयर्ड and no task will be left or repeated. The list of work is being prepared in such a manner that no task will be left or no task will be repeated, and the special consideration for the same is being undertaken. यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने एक बार ध्यान में लेके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब आप फॉर्म करते हो तो उसमें लिस्ट ऑफ वर्क वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, वो भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो एक बार ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद लिस्ट ऑफ वर्क कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जिससे कि कोई भी टास्क जो है वो रिपीट नहीं होता और कोई भी टास्क जो बिजनेस से रिलेटेड है वो रह नहीं जाता. एंड due consideration or special attention is being made towards that thing. तो इसके ऊपर एक खास ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से वर्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेक करने हैं जिससे कि कोई भी टास्क रह ना जाए और वो टास्क लिस्ट ऑफ वर्क में इन्वॉल्व किया गया है वो रिपीट ना हो. So due consideration should have to be given for this function, that is list of work. Third thing is related to departmentation function. So the work which are similar in nature and similar function are placed together. Work is divided as per sales area, account area और purchase area. तो यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन में वर्क का डिवीजन होता है. तो जो भी वर्क जो भी सिमिलर होता है इन नेचर या भी जो भी सिमिलर फंक्शन है
they are all placed together and the work is being divided as per the different area of work which is there, or different areas or sections which are there in the business. So work is divided as per sales area and account area and purchase area of the business unit. Or you can also take the example of sales department. In sales department, the distribution of task is being taken into consideration, or the distribution of work is there that is related to advertising task, distribution task, sales task. तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि वर्क को डिवाइड किया जा सके, और वर्क को एज अ डिवाइड किया जाता है उन फील्ड्स के या फिर उन सेक्शन को ध्यान में लेते हुए जो बिजनेस के अंदर है। तो वर्क को सेल्स एरिया में, अकाउंट एरिया में और परचेस एरिया में ठीक तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट में जो टास्क होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टास्क, सेल्स टास्क और एडवर्टाइजिंग टास्क में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से। To determine, the next point is related to determine departmental positions and ability. So the task to have to be assigned to a person who is having the who is able to handle the responsibility as per his capabilities and skill. So for example, sales officer for the sales department. तो यहाँ पे जो भी डिटरमाइनिंग द डिपार्टमेंट कैपेबिलिटीज या फिर डिटरमाइनिंग द positions and ability of a person who can be able to handle the task that is related to organizing or that is related to a particular department. So the responsibility is handed over to the person who can be able to fulfill the responsibility that is related to a particular department. तो यहाँ पे जो भी एक बार जो डिपार्टमेंटेशन फंक्शन जब पूरा हो जाता है तो उस वर्कर को या फिर उस एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है जिनमें कुछ कैपेबिलिटीज होती है या फिर जिनमें कुछ स्किल होती है जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। जैसे कि सेल्स ऑफिसर को सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है, और पोस्ट एंड कैटेगरीज एज पर पर्सन टू बी अपॉइंटेड। यहाँ पे पोस्ट और कैटेगरी जो भी व्यक्तियों को आपको बिजनेस में अपॉइंट करने का है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस पोजीशन, डिपार्टमेंटल position and activity is related to appointing a right person for a right position, or you can say a right person for a right job. तो एक तरह से जो भी व्यक्ति जो आप अपॉइंट करना चाहते हो अपने बिजनेस यूनिट में, इस पॉइंट में उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से फुलफिल कर सके। जैसे कि आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए किसी सेल्स ऑफिसर को अपॉइंट करते हो, क्योंकि एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सन हु इज डीलिंग विद द सेल्स विल बी एबल टू मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट। जिससे सेल्स का थोड़ा नॉलेज हो वो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। And the next thing is post and categories as per person to be appointed. That is also being taken into consideration while determining the departmental position and abilities. तो कौन कौन से पोस्ट और कैटेगरीज में आपको किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है उस चीज पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। Next thing is delegation of authority and responsibility. Yes, the subhead, the skilled head or the main heads of any organization
are being finalized and they are being given some of the authority and responsibility so that they can do their work in a right way. तो जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है, सब डिविजन्स के हेड्स हैं और जो भी स्किल्ड यानी कि एक्सपर्ट पर्सन्स है, उनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है जिससे कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके. So the departmental heads, sub heads and the skill heads are being finalized, यानी कि उनको अपॉइंट किया जाता है और उनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है जिससे कि वो अपना काम ठीक से कर सके. क्लैरिफिकेशन ऑफ ईच पोजीशन इज ऑल्सो नेसेसरी. Means the person should have the knowledge of his or her position. So while delegating the authority, it should have to be considered or it should have to be taken into mind that the clarification of each position should have to be done. तो किसी भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते वक्त ये एक चीज भी ध्यान देना जरूरी होता है कि वो जो भी व्यक्ति है उसको अपने पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, उसे अपने वर्क के बारे में भी पता होना चाहिए. सो प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑल्सो हैव टू बी देयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो और अथॉरिटी कम हो और अथॉरिटी ज्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो. So proper match should have to be there between the authority and responsibility while it is being assigned to any departmental head or subdivisional head. यहाँ पे authority और responsibility को delegate किया जाता है किसी organization structure में जिससे कि जो भी business का objective है उसे achieve किया जा सके. उसके लिए कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स, सब डिविजनल हेड्स और जो भी स्किल्ड या एक्सपर्टाइज्ड पर्सन है उनको अपॉइंट किया जाता है या फिर उन्हें फाइनलाइज किया जाता है और उनके पोजीशन को कंसीडर करते हुए उन्हें कुछ कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है. और इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता है कि उनकी जो पोजीशन है it should have to be clarified in a right way. So clarification of position is also an important factor while delegating the authority and responsibility in organizing process. So proper proportion of delegation means proper proportion of authority and responsibility should have to be there so that the individual or the person should be able to do his work in a right manner. तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन रहा तो ही जो भी व्यक्ति है वो अपना काम ठीक तरीके से कर सकेगा. नेक्स्ट थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटररिलेशन. मीन्स वंस द प्रॉपर डिपार्टमेंटेशन इज डन, जो वर्क का डिवीजन वो हो जाता है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो हो जाता है, इसके बाद जो फॉर्मुलेशन ऑफ इंटर रिलेशन आता है. सो द फॉर्मुलेशन ऑफ इंटर रिलेशन शुड बी मेड क्लियर. यानी कि जो इंटर रिलेशन दो डिवीजन और दो वर्क के बीच में होता है दैट शुड हैव टू बी फॉर्म्ड सो दैट द प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉसिबल. तो जो भी इंटर रिलेशन जो फॉर्म होना चाहिए किसी वर्क या डिविजन्स के बीच में वो एक बार काम डिस्ट्रीब्यूट कर देने के बाद बन जाना चाहिए. इट शुड हैव टू बी फॉर्म सो दैट यू कैन सेंट्रलाइज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिपार्टमेंटेशन से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, but the same can be centralized by the formulation of interrelationship. आप जब किसी भी डिवीजन या फिर किसी भी वर्क से रिलेटेड एक इंटर रिलेशन क्रिएट करते हो while making the organization structure, at that time you are able to control the proceeding of working. So the centralization means the control can be exercised
by a particular individual or head by creating an interrelation of work. तो इस तरह से आप किसी भी वर्किंग को ठीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते वक्त you have established an interrelationship among different divisions and work group. तो इसका एक फायदा ये है कि आप इंटर रिलेशन क्रिएट करने के बाद कंट्रोल को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक वर्क दूसरे वर्क से कैसे अलग है या फिर कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है उसे फाइंड आउट करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पोजीशन। सो organizational chart should have to be prepared by which the individual can know about his position. Next thing, it should have to be presented or it should have to be hanged on the notice board so the individual can clarify or can identify his respective position that is related to his work. It is about the types of organization. In types of organization, many types are there. For example, linear organization, formal organization, informal organization, functional organization, and metric organizations are there. Today I am just going to explain you two types of the organization, which are linear organization and functional organization. So this linear organization is also being termed as an army organization, and because it forms or it distributes the power and responsibility in a straight line from top level to the bottom level, that is why it is being termed as a or it is being called as a linear organization. यहाँ पे जो भी फ्लो ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू टॉप से लेके बॉटम तक आता है, इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। इट इज द सिंपल एंड एशियन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंपल तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और काफी पहले से यूज किया जाने वाला एशियन टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सो हाउ दिस इज बीइंग फॉर्म्ड, ये कैसे बनता है? Here the division of work is being made on the basis of different departments or divisions. So the work is being distributed or divided among different divisions. इसमें जो भी वर्क रहता है वो अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी ऑफिसर्स किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सेक्शन से जो कनेक्टेड है उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। These divisional officers are being appointed, and the divisional officers are responsible to the higher superior. तो यहाँ पे जो भी डिविजनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने हायर सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल है या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे या फिर उसका रिपोर्टिंग करे। ठीक उसी तरीके से दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, administrative department and sales department is responsible or is answerable to the general manager because he is the higher administrative authority. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में the power lies with the board of director. जो मेन पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है और जो जनरल मैनेजर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। So the divisional officers are being appointed in order to perform their respective work, and the divisional officers are being responsible to their higher officers. इसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आर्मी में जो नीचे डिविजनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने हायर लेवल के ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके साथ रिपोर्टिंग करते हैं
और उनके अपने जो भी काम से रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है वो करते हैं और उनसे आंसरेबल भी होते हैं. Means whatever work is being done by them, they are accountable or answerable for the same. So in this kind of organization structure, the divisional officer is having the total authority of his respective work. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिविजनल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं उसको अपने डिवीजन या अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई टोटल अथॉरिटी मिलती है. मींस टोटल पावर इज देयर इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन टू परफॉर्म हिज वर्क, और टोटल अथॉरिटी इज बीइंग गिवन टू दैट पर्सन टू परफॉर्म हिज रिस्पेक्टिव वर्क. नेक्स्ट थिंग इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा अलग है, बिकॉज द स्पेशलाइज्ड ऑफिसर और एक्सपर्ट हु इज हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज is being appointed and provide and assign the responsibility with respect to his job in a particular unit. तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाते हैं. They are being assigned some responsibility for a particular unit, and in that kind of organization can be termed as a functional organization. Functional organization में एक एक्सपर्ट अपॉइंट होता है और उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो अपने एरिया में जो वर्क है उसको ठीक तरीके से कर सके. हाउ दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग फॉर्म्ड. ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, बल्कि डिवीजन ऑफ वर्क या फिर नेचर ऑफ वर्क को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. सो इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेनली द नेचर ऑफ वर्क, नॉट द डिपार्टमेंट और डिवीजन. यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे ध्यान दिया जाता है, जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ वर्क को ज्यादा कंसीडर किया जाता है. The next thing is that in the functional organization, the expert who is being assigned the responsibility is being or he is having the total control or total authority of his respective work. Means here आप ये देख सकते हो कि परचेस ऑफिसर जो है he is responsible for his purchase related work. तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर या जो भी स्पेशल एक्सपर्ट जो अपॉइंट हुए हैं उनका जो भी वर्क रहता है उसके लिए वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन्हें अपने एरिया जो वर्किंग एरिया है उसमें जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स आते हैं दे आर एबल टू असाइन देम सम टास्क. तो जो भी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स या एक्सपर्ट इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनके अंदर कोई एम्प्लॉय अगर काम करता है तो उसको किसी तरह का टास्क असाइन करने के लिए इन लोगों के पास अथॉरिटी होती है. So this is something about the functional organization, that in which a specialized officer is being appointed and the authority is being assigned to him for a particular unit. एक particular unit से जुड़ी हुई authority किसी specialized officer जिसके पास या फिर किसी expert को जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो एक पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड काम कर सके. इसमें जो भी एक्सपर्ट होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल टोटली फॉर हिज एरिया ऑफ वर्क और ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज यूनिट. तो यहाँ पे जो भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्सपर्ट वर्क कर रहा है वो अपने एरिया से टोटली अपने एरिया के वर्क के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ही इज नॉट ओनली एन advisor but the expert who is there in the functional organization is also an administrative head. उसे अपने काम से जुड़ी हुई बातों को या फिर अपने फील्ड में जो भी काम हो रहा है उसकी देखरेख थोड़ी करनी पड़ती है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट अपॉइंट हुए हैं उनको. एंड ही कैन ऑल्सो
give the guidance or direction, or he can assign the job to some employee or worker that is working under him. इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अंडर जो भी एम्प्लॉय रहते हैं उनको कुछ टास्क असाइन कर सकते हैं. So this is something that is related to linear organization and functional organization. Thank you.